Conchem classes means concept of chemistry classes. To get latest video, subscribe my channel and press bell icon. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर का ये टॉपिक है। एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल वाले चैप्टर से। तो हमारा आज का टॉपिक है ईथर। ईथर क्या होता है? अगर ऑक्सीजन से दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, इफ ऑक्सीजन बॉन्डेड विद द एल्किल ग्रुप, that is called on both side, all the valencies of oxygen bonded with the alkyl group, that is called ether. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ROR या ROR-। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर एल्किल ग्रुप सेम है, R है, इस साइड में भी R है, on the both side of oxygen there is a similar alkyl group, then it is called symmetrical ether. Symmetrical ether. If both the alkyl group, this R dash and R, is not equal, then it is called unsymmetrical ether. Unsymmetrical ether. So I gave you example. This example is an example of symmetrical ether. Methyl oxygen bonded to methyl group on the both side, and this is an example of symmetrical ether. One example of unsymmetrical ether I am taking here, that CH3O CH2 CH3. This on the both side of oxygen there is a different alkyl group. One is methyl, another is ethyl, and this type of ether is called unsymmetrical ether. So example of unsymmetrical ether and example of a symmetrical ether. Okay, we can represent this compound by a general formula CnH2n plus 2O. This is the general formula to express the ether. Suppose the carbon number is 2, then number of hydrogen is 2 to the 4 plus 2, that is 6, and O. Let's see, this is oxygen. One oxygen is there. There is 2 carbon and 6 hydrogen. So this general formula belongs to this ether. Let's talk about the preparation of ether. How can you prepare ether? The first method is Williamson synthesis. This is the first method, Williamson synthesis. What is Williamson synthesis? Suppose an alkyl halide react with sodium alkoxide, then there is a formation of, this is suppose R dash, there is a formation of ROR dash plus Na and X, NaX, sodium halide. So if you are writing about the Williamson synthesis, suppose you are writing short note, you can easily write
here by seeing this reaction when alkyl halide react with sodium alkoxide. Alkyl halide, suppose I am taking one example, methyl chloride react with C2H5ONa and there is a formation of CS3O C2H5, an ether and NaCl, that is sodium chloride. Let's talk about the IUPAC name of this ether. The smaller alkyl group along with the oxygen, the name of smaller alkyl group is methyl and the name of this O is oxygen. So the smaller alkyl group, from a smaller alkyl group we take meth, from oxygen we take methoxy, and rest the larger carbon chain are named as their alkane name, that is 2-carbon ethane. This is the IUPAC name of this ether. Another example I am taking here, CS3 CS2 Cl when react with C2H5ONa sodium ethoxide and there is a formation of डाईइथाइल ईथर. हमने इसको C2H5 को CS3CH2 लिखा है, यहाँ पे C2H5 को डायरेक्टली C2H5 लिखा है, लेकिन जब ये कंपाउंड में लिखा है तो इसको अलग अलग करके लिख दिया है, एल्किल ग्रुप यानी दोनों कार्बन को अलग अलग करके लिख दिया है. तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आप कहोगे यहाँ C2H5 था, वहाँ CH2 CH3 कैसे हो गया? C2H5 ही है वो भी, बस उसको अलग अलग करके लिखा है. और इसका नाम होगा, इसमें स्मॉलर एल्किल ग्रुप कौन सा होगा? दोनों ही एक बराबर हैं, तो इथाइल का हम लेते हैं एथ, ऑक्सीजन का लेते हैं ऑक्सी एथॉक्सी, और 2 कार्बन एल्किल ग्रुप का एल्केन नेम जो है एथॉक्सी एथेन होगा. तो ये रहा विलियमसन सिंथेसिस, बहुत सिंपल है. व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम एल्कोक्साइड. लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस विलियमसन सिंथेसिस. क्या होता है ये, कैसे होता है ये रिएक्शन? कार्बन क्लोरीन that is a polar bond. Carbon chlorine bond is a polar. Chlorine attract the electron of carbon, shared pair electron of carbon. So there is a slightly negative charge arise on chlorine and slightly positive charge on carbon. This sodium alkoxide or sodium methoxide, suppose I am taking an example of CS3O minus Na plus. Why I am writing like this? Because this sodium plus ion is an electrophile and methoxide ion is a nucleophile. In this reaction, a nucleophile, that is methoxide attack on the carbon, that is a center for this nucleophile. Nucleophile means nucleus loving, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज. तो ये वाला ऑक्सीजन या ये ग्रुप जो है इस कार्बन पे अटैक करे. क्यों कार्बन पे अटैक करेगा? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, इस वजह से क्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा कार्बन की तरफ से और कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये अटैक किया इस पे. मैं बाकी बॉन्ड्स को ऐसे ही एज सच इंटैक्ट रखता हूं. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और नया बॉन्ड जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा OCH3 के साथ. जैसे ही कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया और ये Cl माइनस अलग हो गया. ये Cl माइनस और Na प्लस कंबाइन होकर के NaCl बना लेते हैं. तो ये मैकेनिज्म हम हेलो एल्केन्स में पढ़ चुके हैं और ये SN2 मैकेनिज्म है, यानी विलियमसन सिंथेसिस फॉलो SN2 मैकेनिज्म. सपोज कर लीजिए आपने ले लिया है
टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, और आपने दूसरा एल्कोक्साइड जो लिया है वो है C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड लिया। तो जैसे आपको पहले बताया विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड का जो रिएक्शन होगा उससे बनना चाहिए ये वाला प्रोडक्ट, ईथर जो बनेगा वो होगा दिस। ये ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट हमारा नहीं होगा। इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा एक्चुअली वो हम डिस्कस करेंगे। यही ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का कि अगर टर्शियरी का हैलाइड लेंगे तो ईथर बनने के बजाय एल्कीन बन जाएगा। क्यों बनेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यह जो रिएजेंट है वह एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जरा इस रिएक्शन को अगर हम कोरिलेट करें, अगर NaOH इथेनॉलिक, एथेनॉलिक मतलब द मिक्सचर ऑफ NaOH इन इथेनॉल, दैट इज इथेनॉलिक NaOH। अगर आप इथाइल अल्कोहल में NaOH का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं उसमें और उसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- के रूप में अलग होगा, और उसी समय यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे करके H+ के रूप में अलग होगा, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बगल में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया? कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ है वो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर आ गया है, के पास चला गया है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज राइज हुआ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों राइज हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को दे दिया है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो पहुँच गया है। अब ये इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। दो एडजेसेंट कार्बन के पास अगर एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो एल्कीन है, वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने एलिमिनेशन देखा है और इसके पिछले चैप्टर में, और इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। यही बीटा एलिमिनेशन यहाँ भी होता है, यहाँ भी ये बीटा एलिमिनेशन होता है। यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है और इस वजह से बीटा एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर द विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटा और जो हाइड्रोजन था एडजेसेंट कार्बन का वो टूटा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3 आपने एज सच लिख दिया, देन CH2 यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन पे है तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब क्या करें, हमें टर्शियरी का एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्कोक्साइड लेकर के जो है एल्कीन मिल रहा है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो हैलाइड प्राइमरी लीजिए और एल्कोक्साइड टर्शियरी लीजिए, जिससे एलिमिनेशन डोमिनेट नहीं करेगा। C2H5OH सॉरी C2H5Cl टर्शियरी ब्यूटाइल का हमने सोडियम ऑक्साइड ले लिया है और इससे प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें टर्शियरी ग्रुप मौजूद होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको बनाना है तो टर्शियरी एल्कोक्साइड लीजिए और प्राइमरी एल्किल हैलाइड लीजिए। अगर आपने टर्शियरी हैलाइड ले लिया है और प्राइमरी एल्कोक्साइड ले लिया है तो बीटा एलिमिनेशन होगा, और बीटा एलिमिनेशन से हमें एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, न कि ये। तो ये रहा विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक हम लेंगे
12th क्लास के लिए, और हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।